دیکھتا ہوں چیئرمین نیب میں کتنی جرت ہے جو ٹی وی پہ آ کے بڑکے لگاتے ہیں. ہم کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں دیکھتے. تو جناب چیئرمین صاحب، نارووال سپورٹ سٹی نے تو تمام قواعد و ضوابط پورے کیے، متعلقہ فورمز کی منظوری حاصل کی، اور جو متعلقہ وزارت تھی اس نے ٹھیکے ٹینڈر کے ذریعے ایوارڈ کیے. یہاں اسی ضلع میں ایک اور منصوبہ ہے جہاں نہ کوئی ٹھیکہ لگا، جہاں نہ کوئی منظوری لی گئی. 17 ارب روپے ان گراس وائلیشن آف آل پروسیجرز اینڈ لاز لگا دیے گئے. آپ میں جرت ہے تو پلاننگ منسٹر موجودہ اور پرائم منسٹر کے خلاف ریفرنس بنا کے دکھائیں. سونے پہ سہاگا یہ کہ ابھی کابینہ سے عمران خان نے 17 ارب روپے کا NRO حاصل کر لیا ہے کہ جو ہم نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے اس کی پوسٹ فیکٹو اپروول دے دی جائے، یعنی کہ بعد از کام اس کی منظوری دے دی جائے کہ یہ ہم کر چکے ہیں، اس پہ اب کابینہ مہر لگا دے کہ سمجھا جائے کہ یہ درست ہوا ہے. یہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی طرح کا اور سکینڈل ہے کہ جہاں پر سنگل سورس کے اوپر 17 ارب روپے کا منصوبہ بنا دیا گیا. اگر ٹینڈر کیا جاتا، کمپٹیشن ہوتا، تو کم سے کم 4 سے 5 ارب روپے کی بچت کی جا سکتی، کم سے کم. لیکن اس پر کوئی نہیں بنا سکتا. اب عمران نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں، میں مافیاز کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا چاہے میری حکومت چلی جائے. نیازی صاحب، حکومت تو آپ کی جانے والی ہے، ڈول رہی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ مافیا سے لڑ رہے ہیں. آپ کی حکومت اس لیے ڈول رہی ہے کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتی، آپ سے حکومت چلی نہیں ہے. 3 سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. 3 سالوں میں ہر شعبے میں مافیاز کو پالا ہے، مافیاز کی سرپرستی کی ہے. موجودہ حکومت مافیاز کی حکومت ہے. یہ مافیاز سے کیسے لڑ سکتی ہے؟ چینی کا مافیا آپ کی ناک کے نیچے ہے، آٹے کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے، دوائیوں کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے، پٹرول اور LNG کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے. آپ نے کئی ہزار ارب کا ملک کا نقصان کیا ہے اور اپنے مافیاز کو پالا ہے جو آپ کو الیکشن میں ڈونیشن دیتے ہیں، جن کے پیسوں سے آپ الیکشن چراتے ہیں. آپ نے ان مافیاز کی سرپرستی کی ہے. پاکستان میں مافیاز کے سب سے بڑے سرغنہ تو عمران نیازی صاحب آپ خود ہیں. آپ کون سے مافیا سے لڑنے کی بات کرتے ہیں؟ اصل میں اب آپ کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے. آپ کو ڈسکا میں بھی نظر آیا، وزیر آباد میں بھی نظر آیا، خوشاب میں بھی نظر آیا، نوشہرہ میں بھی نظر آیا، کراچی میں بھی نظر آیا. اب آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو آپ مافیا سے لڑنے کا بہانہ کرتے ہیں. ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کے تمام مافیاز آپ کے سرپرستی میں چل رہے ہیں. کسی کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکے اور نہ آپ کر سکتے ہیں. حکومت کے مشیر 2 دن سے کہہ رہے ہیں معیشت ٹیک آف کر گئی. اگر مہنگائی کا ٹیک آف کرنا معیشت کا ٹیک آف کرنا ہے پھر تو یقیناً معیشت ٹیک آف کر گئی ہے. مرغی کا گوشت 500 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. غریب آدمی اپنے بچوں کو سوائے ہانڈی میں پانی ابال کے کچھ اور کھلانے کے قابل نہیں رہا، چونکہ کوکنگ آئل کی قیمت بھی 300 روپے کلو سے اوپر جا چکی ہے.
ये महंगाई का अजाब और महंगाई के पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट से ऊंचे हैं, इन्होंने ज़रूर तरक्की की है, मईशत ने तरक्की नहीं की है। कहते हैं कि 3.9% के अदाद शुमार आ गए ग्रोथ के। ऑपोजिशन परेशान है। वो बाबा ऑपोजिशन परेशान नहीं है, आपके अपने हमायती परेशान है कि ये कहाँ से नंबर निकल आया। इतनी धांधली तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये मईशत की जो नंबर्स हैं, ये भी आरटीएस के नंबर्स हैं। जिस तरह आरटीएस से नतीजा निकला था, इसी तरह ये ग्रोथ रेट का नतीजा निकला है। एक और लतीफ़ा ताज़ा हुआ है कि वज़ीर ख़ारजा साहब आए हैं और उन्होंने भाषण जारी किया है कि मैंने कश्मीर का खाका बना लिया है और मैं वज़ीर आज़म को पेश करूंगा। 2 साल हो गए हैं, भारत ने कश्मीर को निगल लिया है। 2 साल हो गए हैं, भारत ने कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। 2 साल हो गए हैं, कश्मीरी रहनुमाओं को जेलों में डाल के कोविड के कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, कोरोना के रहमो करम पे फेंका गया है। 2 साल हो चुके हैं, कितनी हमारी माँओं बहनों की इज्जतों को पमाल किया जा चुका है। तो 2 साल बाद वज़ीर ख़ारजा साहब फरमाते हैं कि मेरे जहन में कश्मीर का खाका बन गया है। 2 साल आपको खाका बनाने में लगे हैं और कश्मीरी कह रहे हैं खाक हो जाएंगे हम तुम्हारे खाका बनने तक। तो ये खाके ही बना सकते हैं। इसी तरह का खाका नया पाकिस्तान का बनाया था, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, जिसने पाकिस्तान की ताकत को कमज़ोर कर दिया है। और आज दुनिया में पाकिस्तान एक भिखारी बन चुका है। वो पाकिस्तान जो सी पैक का मकनातीस था, वो पाकिस्तान जिसमें अमेरिका, यूरोप, जापान, मशरक़ वस्ता हर मुल्क का सफ़ीर आके हमसे कहता था कि हम कहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। आज उस पाकिस्तान को आपने फ़कीर बना दिया है और हुकूमत के मुशीर कहते हैं कि जी हमें कर्ज़े बड़े मिले। शर्म नहीं आती। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कर्ज़े गुज़श्ता 3 सालों में लिए गए हैं। हमने जो कर्ज़े लिए वो पैदावारी कर्ज़े थे, बिजली के मंसूबे लगाए, मोटरवेज़ बनाई, सी पैक के मंसूबे कामयाब किए, गवादर की बंदरगाह शहर को आबाद किया, यूनिवर्सिटियां बनाई, सेहत के मंसूबे लगाए। हम अपने कर्ज़ों की पाई का हिसाब हर फोरम पे देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था कि ये जो कर्ज़े खा गए हैं उनकी हम तहकीकात करेंगे। जब उस कमीशन की रिपोर्ट आई तो पता लगा उस रिपोर्ट में तो खुद हुकूमत फंसती है, क्योंकि हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्ज़े खुद लिए हैं। लेकिन हमारे और इनके कर्ज़ों का ये फ़र्क है कि हमने प्रोडक्टिव नेशनल एसेट्स बनाने के लिए कर्ज़े लिए थे जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। हुकूमत ने जो कर्ज़े लिए हैं वो डेड लोन्स हैं, वो मुर्दा कर्ज़े हैं, इसलिए कि वो सब के सब खसारा पूरा करने के लिए लिए गए हैं। चूँकि हुकूमत टैक्स वसूल नहीं कर सकी, मईशत में इजाफा नहीं कर सकी, बढ़ोतरी नहीं कर सकी, अपने अखराजात पे काबू नहीं पा सकी, इसने इंटरेस्ट रेट डबल करके कर्ज़ों का बोझ दुगना कर दिया। उस बोझ को पूरा करने के लिए, खसारे को पूरा करने के लिए ये आंखें बंद करके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से कर्ज़े लेते रहे हैं। और आइंदा जो हुकूमत आएगी उसके लिए पीटीआई हुकूमत के कर्ज़े एक पुल सरात से भी ज़्यादा ख़तरनाक मरहला होंगे, क्योंकि उनके एवज़
मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, वो सारे के सारे कर्जे इमरान नियाजी की नालायकी, नाअहली और नाकामी की नज़र हो गए। डॉक्टर साहब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब की दावत तो कबूल कर ली, क्या पीडीएम और पीपल्स पार्टी में सुलह हो गई है कि आप आगे मिलके आगे बढ़ेंगे या फिर अभी तक जो तकसीम है? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज अपोजिशन जमातों को बुलाया है उसका मकसद ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन मिलकर हुकूमत के बजट पर मौसर किरदार अदा करे, और अगर हुकूमत ने अपनी नाकामी और नाअहली का बोझ अवाम पे मज़ीद टैक्सों की सूरत में डालने की कोशिश की तो अपोजिशन उसको नामंजूर करेगी और उसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ामत करेगी। तो आइंदा बजट सेशन के अंदर हम चाहते हैं कि अपोजिशन उसके बामी जो भी इख्तलाफात हों वो अवाम के मफाद में, इस मुल्क के गरीबों के मफाद में, इस मुल्क के नौजवानों के मफाद में, मज़दूरों और किसानों के मफाद में बजट के अंदर हुकूमत को किसी अवाम दुश्मन कदम उठाने से रोके। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि तवील अरसे के बाद चौधरी निसार खान साहब जो है मंजर आम पर आए हैं, आज लाहौर में पंजाब असम्बली के इजलास में कह रहे हैं हल्फ भी उठाएंगे, क्या उनके साथ भी मुस्लिम लीग नून की सुलह हो सकती है या शहबाज शरीफ साहब से कोई राब्ते हो सकते हैं? देखिए, चौधरी निसार अली खान साहब खुद वाजे कर चुके हैं कि वो अपने हलके की सियासत के पेश नज़र वहाँ पर एक नया इलेक्शन सीट खाली होने की सूरत में अगर वो हल्फ नहीं उठाते तो वो हल्फ उठा रहे हैं। बाकी वो ख़ुद अपनी सियासत के बारे में राय दे चुके हैं कि उनके ख़यालात नहीं तब्दील किए, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून के साथ उनके किसी इश्तराक का कोई अभी हमारे पास तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।